ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪਣੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਵੀ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ 4 ਮਈ 1963 ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੇਕ ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਖਿਆਲਾਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉੱਚ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੂਨਮ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਵਿਆਹ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਵਮ ਅਤੇ ਬੇਟੀਆਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸੰਸਕਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਖੂਬ ਪੜਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸ਼ਿਵਮ ਧੁੰਨਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਾਰ ਚੰਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬੇਟੀਆਂ ਸੋਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਲੂ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਿੱਠੀ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆਪ ਜੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਸਨ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦੀਨ ਦੁਖੀਆਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮਦਦ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੋਹਤਿਆਂ ਪਰਥ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰਣਵੀਰ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ।
करुणा करो बहावे, कर दे पावन हर एक मन का होना। अपनी करुणा करो बहावे, कर दे पावन हर एक मन का होना। हम चले प्रेम रस्ते के हमसे, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਦਿਆ ਭੂਸ਼ਣ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਪੂਨਮ ਤੁੰਨਾ, ਸ਼ਿਵਮ ਤੁੰਨਾ, ਸੋਨਾ, ਹਰਦੀਪ ਗੋਗਨਾ, ਸ਼ਾਲੂ, ਮੁਕੁਲ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਥ, ਪ੍ਰੇਮ, ਰਣਵੀਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਸੱਚਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। आपके श्री चरणों कमल में कोटि कोटि प्रणाम। आज इस शोक सभागार में हम जिस पुण्यात्मा के आत्मा की शांति के लिए इकट्ठे हुए हैं, भाव से अरदास करें, प्रार्थना करें। हमारे परमपिता परमेश्वर, जाने अनजाने कोई गलती होती है माफ कर देते हैं। जाने अनजाने में हमारे दिवंगत आत्मा स्वर्गीय राजकुमार जी, जो हमारे मध्य नहीं रहे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति पहुंचाए, पीछे परिवार को शक्ति मिले। बेटा ऋतिक अपने पिता के लिए 10 दिन तक लगातार गरुड़ का पाठ घर में रखा, जहां एक तरफ महामारी अपनी चरम सीमा पर है, सबको भय है, सबके सिरहाने में मौत बच रही है, तांडव कर रही है। और ऐसी दशा में जहां लोग चौथा उठा करके अपने को निवृत्ति प्राप्त कर रहे हैं, वहां बेटा ने परिवार में दिवंगत आत्मा के आत्मिक शांति के लिए गरुड़ का पाठ रखा। लेट लालचंद जी अपने बेटे को शिवम बेटा बारंबार हर दिन कथा को श्रवण किया। माता जी शांति देवी, भाई साहब विद्या भूषण जी, उषा, सुरेंद्रपाल जी, रमन जी, अभी हमें समाचार मिली, बड़ा दुख हुआ कि कुछ दिन पहले ही अपने परिवार से छोटे भाई, जहां रवि कुमार रेड्डी जी का कुछ दिन पहले समाचार मिले कि 1 साल पहले देहांत हो गया। वही एक दोहरा घटना दूसरा परिवार में ऐसे एक किसी को बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। संपूर्ण परिवार ग्रहण का दुष्कृत है। बहन कुसुमलता और बहन राजरानी प्रत्येक दिन प्रदर्शन किया। दूर से बेटियां हमारी सोना और शालू दूर से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से प्रत्येक दिन गरुड़ पुराण का पाठ श्रवण किया। भारत, प्रेम, रणवीर बच्चे सभी अरदास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हमारे
दिवंगत आत्मा राजकुमार जी को आत्मिक शांति प्रदान करना। देखो संसार में जो आए हैं वो उसका जाना निश्चित है। अवश्य में भोक्तम जन्म प्रति कर्म शुभ। गीता में भगवान ने कहा कि जाता सिद्ध हो मृत्यु, जिसको मैं जन्म देता हूं उसी दिन उसके मृत्यु भी लिख देता हूं। और मृत्यु एक अटल सत्य है, जीना ही झूठ है। और मौत जब आती है तो किसी की परवाह नहीं करती, ये भी नहीं देखती कि छोटे हैं कि बड़े हैं। Death is spared none, equal as everyone. All the great and small, poor and rich, literate and illiterate. एक अटल सत्य है, जीना ही झूठी है और मरना ही सच है। संसार में जो आए हैं उसको जाना निश्चित है। गरुड़ पुराण में लिखा है, पंच महाभूत तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। चित जल भाव गगन शमीरा, पंच तत्व से रचित शरीर। जिंदगी बहुत थोड़ी है, अगर 100 वर्ष की भी आयु परमात्मा दे तब भी थोड़ी, क्योंकि आगे तो हम सोकर बिता देते हैं। 5 वर्ष का बोला बाल, अब तो 20 भयो, मगर 25 माया का देश विदेश नहीं। हमारा मुश्किल से 10 वर्ष भी आज सुखद बीत जाए तो अपने आप को धन्यवाद समझना चाहिए। कलयुग में 60-70 वर्ष की आयु बहुत ज्यादा हो गई है, इसी के मध्य में ज्यादा से ज्यादा जा रहे हैं। और आज जिस परिवार को एक घाटा हुआ है और पूरी क्षति हुई है, मैं जैसा राजकुमार बाबू के बारे में जानता हूँ, सुना है कि बाजार के कोई भी अपने मोहल्ले के तो छोड़िए, जिसने भी सुना उसकी आंखों से अश्रुपात हो गए। इतने दयालु, इतने धर्मात्मा, इतना दृढ़ संकल्पी व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो कहते राजकुमार मेरे से तो तुमने नहीं किया। इतने धर्मात्मा व्यक्तित्व, इस तरह के व्यक्तित्व को चले जाना इस परिवार को तो घाटा होता है, इस बेटे को तो घाटा होता है, इस परिवार को। भाई विद्याभूषण जी है, लेकिन मौत क्या है, किसी की चलती नहीं, और मौत आती है तो लेकर चली जाती है। इसका कोई एक्सचेंज भी नहीं होता है, ऑब्जेक्ट भी नहीं है। लेकिन जो तन लागे सो तन जाने, बेहतर है उनको जाने। जिस परिवार को ये घाटा होता है, जिस परिवार के एक सदस्य, जिस परिवार का एक मुखिया चला जाता है, उस परिवार को मैंने देखा है 10 दिनों तक बिलख बिलख करके कथा श्रवण किया है। अंदर आत्मा टूट जाती है जब इस तरह के घर के एक मुखिया पे चले जाना होता है। बापू जिना दे बिछड़े जाते ओ क्यों रोवन थोड़ा हद सहनालो जालिम यारों इस दाना बिछोरा, इस दाना बिछोरा। यादां दिया ने बिछड़े बाप दिया हंजुआ वालियां नदियां
दिया आज इस परिवार को केवल याद ठोकरिया के टुर गया माई अत दे गया बिच फरियादा कल्ली बैके मैं रत रत रोवा आओगे केड़ियां हरे आओगे केड़ियां यादां दिया ने बिछड़े यार दिया हजवा वालिया नदियां ठाठा मार दिया घर अपने बल सोनिया फेरा पा जावे अपनिया औलाद नुदीद करा जावे अपनिया शिवम दीद करा जावे अखियां अखियां ने तेरे दीदार दिया हजवा वालिया नदियां ठाठा मार दिया दुख दुखिया दे दुखिया जाने ते सुखिया की खबरा टुर जाते ने बाप जिना दे टुर जाते ने बाप जिना दे रोंदे तक तक कबरा यादां दिया ने पिछड़े यार दिया हजवा वालिया नदियां ठाठा मार दिया तेरी अतिया प्यार तेरे नूं तरश गईया अखियां च सावन मीगे बरस गईया आजा बाबुलावे आजा बाबुलावे आजा बाबुलावे दिया बाजा मार दिया हजवा वालिया नदियां ठाठा मार दिया। आज की बात आए हैं सुजाएंगे राजा तक दुखी एक सिंहासन चर्चने एक बदली चीज अजलास कोए रोग पुराने अजदे अजला तो रोग पुराने अजदे नहीं तुर जावन
ते मुर्गे लभदे नहीं हाय टुर जावन जिदबा ते मुर्गे लभदे नहीं सब तो जिया संगता यारों बाप दिया सब तो जिया संगता यारों बाप दिया जे दे सदके बनदी किस्मता आप दिया बाप लबर के और सहारे लभदे नहीं बाप लबर के और सहारे लभदे नहीं टुर जावन एक बार ते बापो लभदे नहीं पुत्र पावे लख जान तो मंदिरे बापू आखन सारे जगतों चंगे पुत्रा खातिर गैर के पीछे लगदे नहीं टुर जावन एक बार टुर जावन जद बापू ते मुर्गे लभदे नहीं टुर जावन जद बापू एक ऐसी ही बाप सदा चाहता है मैं हार करके भी अपने बच्चे को जिता हमेशा जिताना चाहता है तो बाप खुद भटे हाल में रह सकता है लेकिन अपने बच्चे को कभी भटे हाल में नहीं देखना चाहता बाप पिता संबल है जीवन है पिता सृष्टि के बहुत बड़े बड़े व्यक्ति है पिता पालन है पिता पोषण है पिता परिवार का बहुत बड़ा अनुशासन माँ अगर संस्कार सिखा देती है तो बाप बहुत बड़ा धीरज सिखा देता है बेटा चाहे जितना भी बुजुर्ग हो जाए लेकिन बाप हमेशा उसे बच्चे मानते हैं बाप रोटी है पिता रोटी है कपड़ा है मकान है पिता छोटी सी पहनने का मुश्किल है पिता बाजार के सारे खिलौने टूटने हैं पिता है तो प्रतिपन्नाग है पिता है तो घर पर अनुराग है पिता है तो माँ की बिंदी और सुहाग है पिता को कहने के लिए मतलब है जो पीता है वही पीता है हमारे सारे अवगुणों को पीता है जब वो संसार से चले जाते हैं तो हमें अपने आप को पता चलता है बाप मरते सारे हौसले बह जावन
बाप मरण ते सारे हौसले बह जावन, पुत्र तिया बिच मुसीबतां पै जावन। हाय लोक पराए कदी भी नेरे लगदे नहीं, तुर जावन एक बार चले जाए। एक छोटी सी प्रसंग सुनाता। एक पिता का आंख काला था, लेकिन काला हो, काला हो, लंगड़ा हो, लूला हो, आप हमेशा अपने बच्चे को अच्छा देखना चाहिए। अपने बच्चे को रोज स्कूल अपने स्कूटर से छोड़ने के लिए जाता। बच्चे कहते थे, पापा जी आप मेरे स्कूल मत आया करो, मेरे सारे दोस्त मुझे चिढ़ाते हैं, कहते काने का बेटा मत आया करो। बाप कहा, बेटा मुझे बड़ी सुकून मिलती है, चाहे धूप में तेरे लिए मैं घंटों खड़ा रहता हूं। बेटा के बार रोकने पर भी माना नहीं, रोज जाना था, लेकर के चले आता। वो लड़का पढ़ लिख करके बहुत बड़ा इंजीनियर बना, आलीशान बिल्डिंग मिला, शोहरत मिला, घर कोठी बंगले मिला। कुछ दिनों के बाद मां गुजर गई। बेटा सोचा कि पिताजी को ले आए, लेकिन गांव वाले ने टेलीफोन किया, पिताजी तेरे गुजर गए। जल्दी से बेटा आया गांव और अपने पिता के पास गया। बेसुध पड़ा हुआ उस बाप को देखा, उसके मुट्ठी में एक पर्ची थी, पर्ची खोल करके देखा, उसमें लिखा था, बेटा मैं जन्म से काना नहीं था, जब तुम 9 वर्ष के थे तो साइकिल चलाते हुए छोटे से साइकिल से तुम गिर गए, तेरी एक आंख खत्म हो गया। डॉक्टर ने कहा कि तेरे बेटे को अब एक आंख से संसार को देखना है। सो मैंने कहा, डॉक्टर साहब मेरा आंख ले लीजिए, लगा दीजिए, अभी तुम जिस संसार को देखते हो मेरा ही आंख है बेटा, मैं जन्म से काना नहीं था। अब तो बेटा फूट फूट कर रोने लगा, जिस पिता ने मुझे आंख तक दान कर दिया, दे दिया, जिससे इतना बड़ा मैं अफसर बना, वो पिता जिनको मैं जिंदगी भर काना कहता है। तो याद रखना, बाप का देह कोई नहीं दे सकता। रिश्तेदार जहान दे लख मोन भावे, ते रिश्ता बाप दा बड़ा अनमोल होंदा, बाकी सारे ते रिश्ते डोल जांदे ने, पर बाप दा रिश्ता सदा अडोल हुंदा। मजा बाप दे प्यार दा ओलेंदा, जे पुत्र बाप दे सदा कोल हुंदा, भावे गुस्से दे विच कोई गल आखिया होवे, पर परिया बाप दे प्यार दे बोल होंदा। मर जाने मर जाए इसका मतलब ये नहीं, क्यों मर जाए। बाप अपने गाली में भी आशीर्वाद छुपा कर रखता है। बाप का देह कभी नहीं दे सकते।
अभी जो कुछ आप हो सब बाप की बदौलत है। बाप ने कभी सपना सजोया होगा, आपको पढ़ाया लिखाया होगा। एक अनपढ़ बाप भी चाहता है कि मेरा बच्चा इतना ब्रिलियंट बने, इतना बने। एक निर्धन बाप भी चाहता है कि बहुत बड़े फॉर्म का मालिक हमारा बेटा बने। एक एक ईंट इकट्ठा करता है, अपने से मेहनत करता है, लेकिन अपने खुद रहता नहीं है। और बच्चे को छोड़ कर जाता है, कभी देख नहीं दे सकते हैं। ऐसी बात की है। अपनी हो औलाद दे हर गल से जान दे, अपनी हो औलाद दे हर गल से जान दे। होर भी होइया दिल दी दिल विच ले जांदे। हाय किसे भी दुख तो किसे भी गल तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं। किसी भी गुल तो बच्चियां कोलों भजदे नहीं। टुर जावन जद बाप तो मुर्गे लभदे नहीं। बाप दे सिर ते बेटे मौजा मान दिया। बाप दे सिर ते पुत्र मौजा मान दिया। बाप मरन तो पापी अभी नहीं जान दिया। बाप मरन ते बेरे सुंजे हो जांदे। जाते जाते खुले बूहे डोर जांदे। हाय कदे किसे दे कसे कदे किसे दे बाप गवाचे लभदे नहीं। टुर जावन जद बाप ते मुर्गे लभदे नहीं। परिवार वालों ने, नेता शिवम ने राजकुमार जी के लिए गरुड़ पुराण उनके आत्मा की शांति के लिए रखा। चौथे दिन फूल चुप करके रखकर 10वें दिन जहां एक तरफ हरिद्वार जाते हुए, जहां एक तरफ पिहोवा जाते हुए लोग आनाकानी कर रहे हैं, फिर भी बेटे ने अपने बाप के लिए सब कुछ किया। 10वें दिन जाकर के हरिद्वार ने अस्थि विसर्जन किया, पिहुआ में जाकर के पिंडदान किया। कई लोग बहाना मार देते हैं, कह देते हैं कि पिहुआ में अभी पिंडदान नहीं करने दिया जाता, लेकिन फिर भी जाकर के परिवार वालों ने उनके आत्मा की शांति के लिए पिंडदान आदि कर किया। और अंत भला तो सब भला। अंत में जिसका अच्छा होता है उसी का जीवन अच्छा है। पुत्र ने कोई कर्म बाकी नहीं रखा। 13वें दिन गरुड़ पुराण का अंतिम अंश सोच रखा है, जिसको मैंने श्रवण करके भोग देना है। आइए
कुछ अंश को श्रवण करें और भोग पाए। समय जितना है उसके मुताबिक इसको बढ़ाना नहीं चाहिए। अंत में क्या कहते हैं गरुड़ पुराण में, एक पेज छोड़ करके रखा गया था, यं ब्रह्मा परं धाम रम्याहं परमं पदम् एवं समक्षचात्मानं आत्मनस्य दान्येष्टने ओम इत्यक्षरं ब्रह्म व्याहारमानुशरं या प्रयात्यर्देयं तयाति परमां गतिम्। जो पुत्र अभिमान से, दंभ से, अहंकार से अपने पिता माता के लिए कर्म नहीं करता, समय नहीं निकालता, वैसे अधम पुत्र को तो दर्शन भी नहीं करना चाहिए। उसके हाथ से तो जल भी पीना मदिरा के समान है। जो पुत्र अपने पिता का कर्म नहीं कर पाता है। हे गरुड़ सुनो, भगवान के ओम शब्द बड़े प्यारे हैं। ओंकार इंद्रशुद्धम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। भगवान ओंकार का ध्यान करना चाहिए। वैराग्य रह करके नीचे शयन करके विधिवत सार कर्म किया पुत्र शिवम ने, अध्यात्म का अनुसरण किया। और कहते हैं जो पुण्य काशी में, प्रयाग में, मथुरा में, अयोध्या में, द्वारिका में, अवंती में, 7 पुरियों में प्राप्त होता है, वह पुण्य अपने माता पिता के मरणोपरांत जो पुत्र कथा श्रवण करता है, कर्म करता है, पिंडदान आदि कर्म करता है, जो त्रिभुवन के 3 परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है, वह फल प्राप्त होता है उस पुत्र को। 1000 गौदान करने का जो फल प्राप्त होता है, वह फल प्राप्त होता है उस पुत्र को जो इस प्रकार से अपने पिता के लिए कर्म करता है। पुत्र पुन्नाम नरको, पुत्र जो है अपने पुन्नाम नाम के नरक से बचाता है। पुत्र त्रायते, पुत्र त्रायते मतलब बचाता है, अपने पिता को दुर्गति से बचाता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में फल स्तुति संबंध है। भगवान, हे भगवान, हे देवाधिदेव, हे नाथ, हे प्रभु, आपने अमृत वचन कह करके उद्धार किया। गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसको हर दिन सुना नहीं जाता है, लेकिन मरणोपरांत तक अगर गरुड़ पुराण नहीं हो तो विमुक्ति नहीं मिलती है। पिंडदान और गरुड़ पुराण ही जो हमें उद्धार मोक्ष को देता है। नरकगामी प्राणी को भी स्वर्गगामी बना देता है। इसलिए दुर्गति से बचने के लिए, सदगति से सदगति को प्राप्त होने के लिए अपने माता पिता के लिए गरुड़ पुराण रखना चाहिए। इत्याख्यातम मया आचम। भगवान कहने लगे, हे गरुड़ जी, मैंने और तेरी सारी क्रिया आपको बतला दिया है। इसकी सुनने वाले को और कहने वाले को दोनों का उद्धार होता है। पितरों की सदमुक्ति मिलती हो। जिनके परिवार में गरुड़ का पाठ सुना जाता है, उसकी 21 पीढ़ी में अगर किसी ने कोई गरुड़ पुराण नहीं सुना हो और वो नरक में भटक रहा हो, उस प्राणी को भी गरुड़ पुराण के इस प्रभाव से 21 पीढ़ी तक का उद्धार हो जाता है। और जीवन में जाने अनजाने कोई भी पाप होता है, गरुड़ पुराण से मुक्ति मिलती है। आपने सुना होगा, भीष्म पितामह 7 जन्म पूर्व एक ब्राह्मण पुरोत्पन्न थे। एक बार जा रहे थे, रास्ते में एक विस्तर सर्प आगे आ गया। बड़ा अभिमान में अपने डंडे से लेकर के उस सर्प को फेंक दिया एक झाड़ी पर। झाड़ी बबूल का पेड़ था, उस पर गिर गया। 6 मिनट तक वह सर्प जीवित रहा और श्राप दे दिया कि हे ब्राह्मण, जिस अभिमान से तुम मुझे यहाँ फेंका और मेरे ये कांटे चुभ रहे हैं शरीर में,
मैं तो प्राणांत कर रहा हूं, लेकिन ऐसे ही तुम्हारी भी प्राणांत होगी। इच्छा मृत्यु के वरदान प्राप्त करके भी विष्णु पितामह को अवश्य में उपलब्धम कृत्य कर्म शुभाशनो, अपने कर्म का फल भोगना पड़ता है। संसार में जो आते हैं अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। महाराज दशरथ जी जाने अनजाने में श्रवण कुमार को मार डाला, लेकिन आप कहते अपने बाप का भी नहीं होता। चार संतान होते हुए भी महाराज दशरथ जी के पास एक भी संतान हाजिर नहीं थे, लेकिन वही जटायु का सौभाग्य कितना था, परहित के लिए पर कटवा लिया तो भगवान अपने हाथों से चिता बसा करके उनको अंत्येष्टि कर्म करवाया जटायु जो गृद्धराज। तो इस प्रकार गरुड़ पुराण में कहा गया है कि सारी समस्याओं का निदान जाने अनजाने कोई पाप हो गया हो। जीवन में हम सभी सोते जगते उठते बैठते जो हमारे चित्रकूट महाराज लिखते जा रहे हैं, तो गरुड़ पुराण जब बच्चे रख लेते हैं तो अपने पिता के लिए सबसे बड़ा उपहार देते हैं, सबसे बड़ा कार्य करते हैं कि वो गरुड़ पुराण सुन लेते हैं। और कभी प्रेत की योनि नहीं मिलती है जिनको गरुड़ पुराण सुना गया हो और पिंडदान कर दिया गया। 3 तरह के ऋण हमारे ऊपर चढ़े रहते हैं, माता का ऋण, पिता का ऋण और आचार्य का ऋण, गुरु का ऋण। तीनों ऋणों से कहीं और विमुक्ति नहीं मिलती है, लेकिन गरुड़ पुराण जो पुत्र सुन लेते हैं तो कहा गया है कि तीनों ऋण से विमुक्त हो जाते हैं। इसीलिए पुत्र को चाहिए कि अपने माता पिता के लिए गरुड़ पुराण अवश्य सुने। पवित्र पाप नाशक ये गरुड़ पुराण है। कहते हैं कि प्रत्येक दिन अलंकरण 1000 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा दान कर लो, 1000 गौदान रोज कर लो, उतना फल गरुड़ पुराण के सुनने से प्राप्त होता है। इस प्रकार से गरुड़ पुराण का अंतिम छंद, अंतिम श्लोक हम सभी श्रवण किए। और जब भी गरुड़ पुराण श्रवण करें, हम सभी समयाभाव के कारण नेता निकट जी को बहुत समय दे देते हैं, लेकिन जो मूल काम होता रह जाता है वह है आरती। हम आरती बैठ करके आरती हो रही। जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के अवगुण बंसी माला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का स्वामी, दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, श्याम सुंदर घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मातु पिता तुम मेरे, शरण गहूं मैं किसकी, स्वामी शरण परूं मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस धरूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्ख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगो
शिवाले प्रभु कुमें कुमति। ओम जय जगदीश हरि दीनबंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ दया कर शरण लगाओ द्वार पर मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे तन मन धन सब है तेरा स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण तेरा तुझको समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मनवांशित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। देवो शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि सुशांति भवतु शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय पंडित जी, आज असी सारे अपने बहुत ही प्यारे वीर राजकुमार राजा जिसको असी सारे प्यार राजा कहके बुलाते सी, वो अचानक सड़क मुश्किल गया है। परिवार ने रिश्तेदार ने और समाज ने बहुत ही दुख की कड़ी है। पंडित जी जिंदगी और मौत बारे दसते सन कि जो भी इंसान दुनिया से आता है अपनी जीवन यात्रा पूरी करके चलता है और ये जो कड़ी है ये कामयाबी नहीं करती। आदमी इसे आके आ जाता है, न अपनी मर्जी से आए न अपनी मर्जी से। दुनिया से कोई इंसान न अपनी मर्जी में आता है और नाम जानता है कि सब पर पिता परमात्मा का बनाया है। पर किसी किसी के लिए ऐसा महसूस होता है कि जिस इंसान ने ये जिंदगी के विच होर बहुत लंबा समा परिवार ने रिश्तेदारों ने बहुत कुछ करना से जरूर जानता है कि बहुत ही क्या अगर देखा जाए राजकुमार जिसका अपना हैंडलूम का कारोबार सी, अपने माँ बाप के दिते हुए संस्कारों के कारण उन्होंने बदौलत कारोबार भी अच्छा कर रहे थे और अपने बच्चों का जो बाप का फर्ज होता है उनका पालन पोषण करना, जिंदगी एक अच्छे इंसान बना के समाज में पेश करना और खुद भी निभा रहे थे। दो बेटियां जो विदेश में था, बेटा अपना कारोबार शुरू करता है। जिंदगी बहुत अच्छे तरीके के नाल गुजरी सी, कदे सोचा भी नहीं सी कि अचानक इस परिवार के आएगी। ये कुछ समा पहला ही इस परिवार में जो पाएगा जाना योग्य नहीं सी, परिवार का दुख मिला। ये परिवार अगर देखा जाए एक संघर्ष में जीवन जी के इस परिवार ने समाज के और उद्योग जगत में अपना अहम रोल अहम स्थान बनाया। ये अपने सब कुछ माँ बाप की बदौलत होता है। जो बच्चे अपनी माँ बाप की सेवा करते हैं उन्होंने सम्मान रवीर कुमार
एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का काम भी है। और देखा जाए कि इस इंसान ने एक बाप की तरह अपने भरावां सहयोग किया, हमेशा कदम कदम के उन्होंने शिक्षा दी। पहले खुद उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष करके अपने आप को कामयाब किया, उसके नाल भरावां भी जिंदगी में कामयाब होने का तरीका भी सिखाया, हिम्मत भी दी और आज सारा परिवार ठीक ठाक चल रहा सी। पर यह भी सच्चाई है जिंदगी के विच कि हर इंसान जो है भैन भाई का रिश्ता जो दुनिया में बनया है सब तो पवित्र और शक्तिशाली अगर कोई संबंध है वो कहना तो भरावां का। और भरावां के जो भरा होंगे हैं बावां होंगी हैं, सारे जानते हैं समाजिक लोग किसी जो अपने आप में महसूस करते हैं कि असि सारे भाई इकट्ठे होके हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जो उस वेले भरा पिछड़ते हैं तो भरावां ने बहुत ही दुखदाई होता है। और खास करके देखा जाए इस परिवार के किसी वेले न चाहते हुए भी परिवारों को मुसीबत आती हैं। माता जी जो आज जिन्होंने खुद अपनी जिंदगी के विच अपने बच्चे होया उन्होंने भी बहुत दुखदाई मां बाप के सामने बच्चों का जाना उस तो ज्यादा नहीं हो सकता। और सानू इत्थे आके भी हिम्मत रखनी पैंदी है क्योंकि सब उस परमात्मा के बस विच है, साडे बस नहीं, क्योंकि वो सानू दुनिया में भेजता है। अगर देखा जाए तो साडा सबका फर्ज बनता है कि परमपिता परमात्मा के दास करिए। परमात्मा इस परिवार में जो लगातार आ रहे हैं, परमात्मा इस परिवार में शक्ति भी दे और नाल आने वाले समय के इस परिवार में कोई दुख ना आए। ये परिवार दोबारा अपनी जिंदगी की शुरुआत करे और नाल जो मेरे वीर राजकुमार जी ने अपनी जिंदगी सोचा सी वो बेटा होता जो सपने पूरा करेगा। और ऐसी परमात्मा के दुआ कर रहे हैं कि परमात्मा इस परिवार में शक्ति दो। मैं देख रहे हैं बहुत सारे प्रबंधे साथी आज परिवार में साझा करके आए हैं, खास करके सारे स्पोर्ट्स एंड सर्जिकल कॉम्प्लेक्स एसोसिएशन ने शोक संदेश आया है। सारे बहुत ही सत्कारयोग विक्टर क्रूज के मालिक मानयोग इतने सुदेवराज जी, उनके बेटे श्री विक्टर जी भी आए हैं। बहुत सारे उद्योगपति आज दुख की घड़ी इस परिवार का दुख साझा करके आए हैं। ये कोई साढ़े दुनिया का दस्तूर है कि दुख बनाया हमेशा घटता है और खुशी बनाया हमेशा बढ़ती है। उस दुख की घड़ी से परिवार का दुख साझा करके आए हो, मैं थोड़ा इतने सारे का बहुत बहुत परिवार को धन्यवाद करना, उत्थे परमात्मा को अरदास करना साढ़े छोटे वीर को परमात्मा अपने चरण स्थान दे। साढ़े अमरुद्रा जी साढ़े मंडल के प्रधान हैं, जो इस परिवार के दामाद हैं, वो भी आए हैं। सारे का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, न जाने कौन सा देश, कहाँ तुम चले